Hello students, today I am going to start maths paper 2, most important paper. There are 8 chapters. First number is differentiation, other name is derivatives. Second is application of derivatives. Third is indefinite integration. Fourth is definite integration. 5 is application of definite integration. 6 is differential equation. 7 is probability distribution. And 8 is binomial distribution. So 8 chapters for 40 marks. Let us start first chapter, differentiation. Most important chapter because all chapters depend upon the differentiation. We have already studied the basic concept of differentiation, standard functions, rules of differentiation. All these topics we have studied in 11th standard. So today, first discuss about the differentiation. First number topic, differentiation. In this year, we are going to study the first derivatives of composite functions, derivatives of inverse functions, derivatives of implicity functions, logarithmic, parametric and higher order derivatives. इस साल हम लोग को क्या करना है, ये 6 टाइप्स डिफरेंशिएशन में स्टडी करना है. कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक, पैरामेट्रिक एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. बट लेट्स फर्स्ट डिस्कस about the basic concept of the derivatives. You know that first, last year we have studied the derivatives of standard functions formulae, the basic formulae of derivatives. First is, first derivatives of any constant number, yani C, is equal to 0. Any constant number means, for example here is derivatives of any constant number means, example, derivatives of phi is equal to 0. D upon dx means, that derivatives with respect to x. First number formula. Second number is derivatives of x raised to n is n x raised to n minus 1. Example, x raised to phi, derivatives of x raised to phi is phi x raised to 4. Why? Phi n is a phi, n x raised to n minus 1 means phi minus 1 is 4. This is a second number formula, most important. Third number, derivatives of log x is 1 upon x. Fourth number, derivatives of e raised to x is equal to e raised to x. Then 5 number formula. 5 number is derivatives of a raised to x is equal to a raised to x log a. Then 6th number formula, trigonometric formulas. Derivatives of sin x is cos x. 7, derivatives of cos x is equal to minus sin x. 8 number, derivatives of tan x is equal to sec square x. 9 number, derivatives of cot x minus cosec square x.
cosec square x. 10 number, derivatives of sec x is equal to sec x tan x. 11 number, derivatives of cosec x is equal to minus cosec x cos x. These are all formulas of trigonometric formula, basic formula of trigonometric functions. Now 12 number, derivatives of 1 upon x is equal to minus 1 upon x square. 13 number, derivatives of root x is equal to 1 upon 2 root x. 14 number, derivatives of 1 upon x raised to n is equal to n minus n upon x raised to n plus 1. Then all inverse formulas. 15 number, derivatives of sin inverse x is equal to 1 upon 1 in square root 1 minus x square. 16 number, derivatives of cos inverse x is equal to minus 1 upon in square root 1 minus x square. Then next is 17 number, derivatives of tan inverse x is equal to 1 upon 1 plus x square. 18 number, derivatives of cot inverse x is minus 1 upon 1 plus x square. And here is also, right here is 19 number, derivatives of sec inverse x is equal to 1 upon x in square root x square minus 1. And one more formula, 20, derivatives of cosec inverse x is equal to minus 1 upon x in square root x square minus 1. Most important 20 basic formulas of derivatives. First is derivatives of c is equal to 0. Second is derivatives of x raised to n is equal to n x raised to n minus 1. Derivatives of log x is 1 upon x. Derivatives of e raised to x is e raised to x. Derivatives of a raised to x is equal to a raised to x log a. Derivatives of sin x cos x. Derivatives of cos x minus sin x. Derivative of tan x sec square x. Derivatives of cot x minus cosec square x. Derivatives of sec x tan x. Cosec x derivative is minus cosec x cot x. 1 upon x derivative is minus 1 upon x square. Root x derivative is 1 upon 2 root x. Derivatives of 1 upon x raised to n is equal to minus n upon x raised to n plus 1. Derivatives of sin inverse x 1 upon in square root 1 minus x square. Derivatives of cos inverse x is minus 1 upon in square root 1 minus x square. Derivatives of tan inverse 1 upon 1 plus x square. Cot inverse minus 1 upon 1 plus x square. मीन्स यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स है, उसका डेरिवेटिव्स क्या है 1 अपॉन इन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो कॉस विनर का सेम रहेगा बट माइनस निगेटिव रहेगा. टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो कॉट इनवर्स क्या होगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा. सेक इनवर्स का 1 अपॉन एक्स इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा तो डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस. दिस इज बेसिक 20 फॉर्मूलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, नाउ हम लोग अभी 11 का थोड़ा रिवाइज स्टडी करेंगे. थोड़े से क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे यहाँ पे. इन 11th स्टैंडर्ड, द फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल्स आपको ऐसे एग्जाम्पल्स थे. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 प्लस साइन एक्स प्लस log x.
तो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आप लोग कैसे करते थे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते थे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते थे, देन वाई डेरिवेटिव इज ऑलवेज dy बाय dx था, देन डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 9 प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, इसे आप कन्वर्ट करते थे 11th में। एक्स स्क्वायर यानी आपको बताया मैंने, इसका क्या होगा 2x होगा, 5 इज कॉन्स्टेंट, ऑलवेज x डेरिवेटिव इज 1, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, ये सब आपने 11th में स्टडी किया है। एनी कांस्टेंट नंबर, अभी मैंने बताया कि एनी कांस्टेंट नंबर डेरिवेटिव इज 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन एक्स, यानी फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर 2x होगा, x का 1 होगा, 9 तो c होगा यानी 0 होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स एंड लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स, दिस इज फाइनल आंसर dy बाय dx। okay, so here is next one more example, see here second number। अभी आपको यहाँ पे दिया है y is equal to x raised to 9 minus 1 upon x plus 3। first differentiate, right, here is differentiate with respect to x, तो यहाँ पे क्या होगा dy by dx is equal to डेरिवेटिव ऑफ x raised to 9 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3। x raised to 9 यानी क्या होता है 9x raised to 8 होगा, क्योंकि 9 इज n, x raised to 9 माइनस 1 यानी 8 होता है। मैंने बताया है यहाँ पे 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव मैंने फॉर्मूले में बताया, 1 अपॉन एक्स डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एनी कांस्टेंट नंबर 0, सो राइट हियर इज 9x raised to 8 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज फाइनल आंसर dy बाय dx इज इक्वल टू सेकेंड नंबर। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये डेरिवेटिव्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टीज है। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। आपको फॉर्मूला प्रॉपर्टी मालूम है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रॉपर्टी, ये सब स्टडी आपका 11th स्टैंडर्ड का है। प्रॉपर्टी, इफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी होगा तो फॉर्मूला प्रॉपर्टी क्या है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉपर्टी है आपका बराबर u इंटू वी का, तो आपको एग्जाम्पल कैसे दिया होता है, y इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल में कौन सा भी लेता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इन सेकेंड ब्रैकेट 5x प्लस 3। सो इन दिस ब्रैकेट यहाँ पे जो था सब एडिशन या सब्ट्रैक्शन था, तो एवरी टर्म्स सेपरेट था। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर सेपरेट टर्म प्लस 5x सेपरेट है प्लस 9, ये एडिशन टर्म्स था। बट इन दिस एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, सेकेंड ब्रैकेट मीन्स डॉट इनटू, डॉट मीन्स इनटू, तो ये अपना पार्ट क्या हो जाएगा u एंड दिस पार्ट इज v। यूज द फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन फर्स्ट राइट हियर इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या होगा dy बाय dx इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट u, यानी वैसे लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 5 डेरिवेटिव ऑफ 5x प्लस 3 u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v 5x प्लस 3 डेरिवेटिव ऑफ u। ओके, सो ये मैंने प्रॉपर्टी यूज किया है u इंटू वी। फर्स्ट ब्रैकेट वैसे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, बट इन सेकेंड ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ दिस 5x का डेरिवेटिव 5 इज 5
x का डेरिवेटिव 1 होता है तो वैसे रहेगा, एंड 3 इज कॉन्स्टेंट नंबर, सो उसका तो 0 हो जाएगा। प्लस 5x प्लस 3, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, एंड 5 इज कॉन्स्टेंट। देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस, x स्क्वेयर इंटू 5, 5x स्क्वेयर प्लस 25 प्लस 5 2 10 x स्क्वेयर प्लस 6x, so 5 plus 10, sorry 15x square, 15x square plus 6x plus 25. This is final answer. This is u into v property. वेरी इजी प्रॉपर्टी, ये सब इजी प्रॉपर्टी है। हम लोग और एक दो एग्जांपल्स उसके देखेंगे। देखो यहाँ पे, नाउ नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल ऑफ u इंटू वी का, y इज इक्वल टू sin x into cos x. First criteria is differentiate with respect to x. पहले आप लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू sin x डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस cos x डेरिवेटिव ऑफ sin x. Sin x derivative of cos x, you know that, minus sin x, plus cos x derivative of sin x, cos x होता है, so sin x into sin x, sin square x minus sin square x plus cos into cos, cos square x. तो आपका फाइनल आंसर cos square x minus sin square x. ओके, u into v. The next प्रॉपर्टी, ये सब आपने स्टडी किया है 11th स्टैंडर्ड में, ये खाली रिवाइज कर रहा हूँ मैं। प्रॉपर्टी डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, इसका प्रॉपर्टी कैसे होता है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, ये इसका प्रॉपर्टी है u अपॉन v. फॉर एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इज इक्वल टू साइन x अपॉन x फॉर एग्जाम्पल। तो ये आपका u है, यहाँ पे v, दिस इज v. सो फर्स्ट डिफरेंशिएट with respect to x, dy by dx is equal to u, आपका v क्या है, x है, u क्या है, डेरिवेटिव ऑफ u sin x है, माइनस फिर से u मीन्स sin x डेरिवेटिव ऑफ x, यानी आपको फर्स्ट यहाँ पे x लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर sin x, फिर sin x डेरिवेटिव ऑफ x, एंड अपॉन v स्क्वेयर, यानी v यानी क्या होता है, x स्क्वेयर. देन फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ दिस x, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x माइनस sin x, एंड x का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है अपॉन x स्क्वेयर. सो फाइनल आंसर क्या होगा आपका, x cos x माइनस sin x upon x square. Okay. One more example of, here we go, exercise number 1.1 of differentiation. In 1.1, the type of the derivatives is composite functions. Most important, composite functions. So first, डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड कंपोजिट फंक्शंस. ये कंपोजिट फंक्शंस कैसे होते हैं आपको मैं बताता हूँ. हम लोग ने फॉर्मूला देखा था. फर्स्ट फॉर्मूला c इज कांस्टेंट नंबर, ओके, बट सेकंड नंबर फॉर्मूला हम लोग ने डेरिवेटिव्स ऑफ x रेज टू n देखा था. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, x रेज टू n, सॉरी n x रेज टू n माइनस 1.
ओके, ये तो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। कंपोजिट में क्या होगा कि कंपोजिट में ये फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स रेस टू एन होगा, एफ एक्स रेस टू एन होगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स रेस टू एन। यहां पे क्या होगा फिर, एन इज एन एफ एक्स रेस टू एन माइनस वन, but again derivatives of fx. What is the difference between composite function and this? यहाँ तो बेसिक में आप लोग x रेस टू n इज इक्वल टू n x रेस टू n माइनस वन बेसिक फॉर्मूला था, बट हियर इज एफ एक्स रेस टू n, फंक्शंस रेस टू n है, सो राइट हियर इज n इन ब्रैकेट एफ एक्स रेस टू n माइनस वन, अगेन डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्टेशन है। यहाँ पे आपको डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेस टू 5 फाइंड करना है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, दिस इज एफ एक्स, सो राइट हियर इज 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेस टू 5 माइनस वन, 5 माइनस वन यहाँ पे तो अगेन डेरिवेटिव्स ऑफ दिस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट जो है उसका अगेन डेरिवेटिव्स करना है एक्स स्क्वायर प्लस 5, सो इज इक्वल टू 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेस टू 5 माइनस वन इज 4 एंड डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x एंड 5 इज अ कांस्टेंट, सो यहाँ पे 2 5 are 10x, sorry 10x x square plus 5 raised to 4. Okay, this is first number formula. Second is second number. Second number आपको क्या है कि डेरिवेटिव्स ऑफ dx रूट ऑफ एफ एक्स ऐसे आपको दिया है। आपको मालूम है कि आपका जो फॉर्मूला है रूट एक्स का वो क्या है, 1/2 रूट एक्स है, बट रूट में क्या है एफ एक्स, सो अगेन डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल, डेरिवेटिव्स ऑफ इन स्क्वायर रूट साइन एक्स है। You know that derivatives of root x is 1/2 root of x की जगह क्या है sin x, but again derivatives of sin x, so is equal to 1/2 root sin x, sin x, derivatives of sin x is cos x, so final answer is cos x upon 2 root of sin x। ये होगा सेकेंड नंबर फॉर्मूला, मीन्स कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन के ऐसा फॉर्मूला है। थर्ड समझो, डेरिवेटिव्स ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स, हियर इज ऑल्सो डेरिवेटिव्स ऑफ साइन कॉस एफ ऑफ एक्स, again derivatives of f of x. So right here is example, sin x log x, for example, derivatives of sin x log x. So sin x derivatives is cos x, cos log x, ये पूरा पार्ट एफ एक्स है, बट अगेन डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स मीन्स log x, so here is cos log x and log x derivative is 1/x, so final answer cos log x upon x। so सेम फॉर्मूले आपके ये कंपोजिट फंक्शंस के फॉर्मूले एंड
बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूले सेम टू सेम है, बट यहाँ पे आपको अगेन डेरिवेटिव्स, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स है, एक्स के जगह आपको क्या दिया है, एफ एक्स दिया है, सो आपको फिर से इसका डेरिवेटिव्स फाइंड करना है, एंड यही आपको एक्सरसाइज 1.1 में है. सो नाउ one more example of this composite. See here, fourth number for example. Derivatives of tan phi x. तो डेरिवेटिव्स ऑफ tan phi x ये fx है, ये आपका क्या है, fx है. डेरिवेटिव्स ऑफ tan क्या होता है, sec स्क्वायर, मैंने लिख के दिया है sec स्क्वायर phi x. बट अगेन डेरिवेटिव्स ऑफ phi x. So sec square phi x, derivatives of phi x, phi. So final answer is phi sec square phi x. ये आपको इस टाइप से एक्सरसाइज नंबर 1.1 करना है. सो एक्सरसाइज नंबर 1.1 में सी फर्स्ट नंबर ऑफ एग्जाम्पल, एक्सरसाइज exercise number 1.1. First example, I will see just a minute. Y is equal to x cube minus 2x minus 1 raised to 5. ये फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है. फर्स्ट राइट डिफरेंशिएट with respect to x, y derivative is dy by dx, ये तो आपको सबको मालूम है. then this part is fx raised to n. so fx यानी क्या होता है, x cube minus 2x minus 1, ये ब्रैकेट है. फर्स्ट इज 5n and bracket raised to 5 minus 1 because n minus 1. derivatives of this bracket x cube minus 2x minus 1. Right here is 5 x cube minus 2x minus 1. 5 minus 1 is a 4. X cube derivatives is always 3x square. X cube का derivative is 3x square because 3 is n minus 1. Minus 2 x का derivative is 1. So 1 लिखना नहीं है, एंड 1 डेरिवेटिव इज 0. तो यहाँ पे ये हो गया आपका फाइनल आंसर डेरिवेटिव्स का फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल. नाउ सेकेंड नंबर एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 1.1. सेकेंड नंबर एग्जाम्पल क्या है, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स रेज टू 3/2 माइनस 3 इन एक्स रेज टू 4/3 minus 5 ब्रैकेट कंप्लीट रेज टू 5/2. एग्जाम्पल है, डोंट वरी. फर्स्ट राइट आपको लिखना है, फर्स्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. राइट इज dy बाय dx इज इक्वल टू, फर्स्ट आपका ये n है, ये ब्रैकेट आपका fx है, हम लोग n लिखते हैं 5/2 ब्रैकेट 3/2 minus 3x raised to 4/3 minus 5 raised to 5/2 minus 1, क्योंकि n minus 1 होता है. अगेन डेरिवेटिव्स ऑफ ये ब्रैकेट 2x raised to 3/2 minus 3x raised to 4/3 minus 5. यहाँ पे तो 5/2, 2x raised to 3/2 minus 3x raised to 4/3 minus 5 raised to ये 5/2 minus 1, ये कैसे सॉल्व करते हैं. मैं यहाँ पे रफ में कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना है. 5/2 minus 1, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 यानी 1/1. डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, इसके लिए 2 इंटू 2 करना है. सो 5 minus 2/2, सो 3/2. तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 3/2. नेक्स्ट इज सेकेंड ब्रैकेट, यहाँ पे 2 इज कॉन्स्टेंट इंटू
ये क्या है, 3/2 n है, सो 3/2 x रेज टू क्या होगा, 3/2 -1 होगा, -3 इंटू n क्या है, 4/3 x रेज टू 4/3 -1 होगा, एंड ये जो 5 है कांस्टेंट टर्म उसका 0 होगा, सो कुछ लिखना नहीं है। नेक्स्ट मेथड 5/2, ये जैसे है वैसे लिखना है, 2x रेज टू 3/2 -3x रेज टू 4/3 -5x रेज टू 3/2, या ऐसे ब्रैकेट करो चलेगा। ओके, नाउ इन सेकेंड ब्रैकेट यहाँ पे आपका 2 कैंसिल होगा, 3 होगा, x रेज टू 3/2 -1, 1/2 होता है, 3/2 में से -1 करेंगे तो 1/2 होता है। यहाँ पे -3 कैंसिल हो जाएगा, 4x रेज टू 4/3 -1, यानी 4 - 3 1/3 हो जाएगा। सो ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर ऑफ दिस डेरिवेटिव्स। वेरी इजी, आपको खाली मेथड याद करना है, क्या करना है। थर्ड नंबर एग्जाम्पल इज y इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। यहाँ पे भी आपको लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x डिवाइड बाय dx। अभी यहाँ पे ये रूट का फॉर्मूला है एंड ये पार्ट आपका fx है। सो रूट का फॉर्मूला है 1/2 रूट एक्स, बट रूट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, अगेन डेरिवेटिव ऑफ ये ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। सो राइट हियर इज 1/2 इन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। सो इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4x का डेरिवेटिव 1, एंड ये कांस्टेंट नंबर है, सो उसका डेरिवेटिव 0। सो राइट हियर इज, यहाँ पे 2 आपका कॉमन आएगा, राइट, 1/2 इन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, 2 कॉमन आएगा तो x प्लस 2, ब्रैकेट में क्या होगा, x प्लस 2। सो दिस टू कैंसल, सो इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन इन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। ये आपका फाइनल आंसर एग्जाम्पल नंबर आपका 3 हो गया। फिर से एक बार में एक 3 एग्जाम्पल बताता हूँ। इन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट का फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव में 1/2 रूट एक्स। सो 1/2 इन ब्रैकेट ये पूरा क्या है, fx लिखा, अगेन डेरिवेटिव ऑफ fx बराबर 1/2 इन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4x का डेरिवेटिव 4 और 7 का 0 होता है। नेक्स्ट है 1/2 इन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, बट ये दोनों में 2 कॉमन आ सकते हैं। सो 2 कॉमन इन ब्रैकेट x प्लस 2, सो हियर इज 2 टू कैंसल। सो आपका फाइनल आंसर होगा x प्लस 2 अपॉन इन स्क्वायर रूट। दिस इज द थर्ड नंबर। नाउ फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका, जस्ट मिनट मैं देखता हूँ फोर्थ नंबर क्या है। फोर्थ नंबर, इन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस इन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, कुछ डरने की बात नहीं है, धीरे धीरे आपको स्टेप वाइज जाना है। यहाँ से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट, डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, पहले फर्स्ट फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स है, 1/2 जो भी है रूट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस इन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। बट अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस fx, ये सब क्या है, fx है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस
in square root x square plus 1. Right here is first 1 upon 2 in square root x square plus in square root x square plus 1. अभी यहाँ पे डेरिवेटिव करना है, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, बट यहाँ पे फिर से क्या हुआ है रूट इन स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है, तो हम लोग 1 अपॉन 2 इन स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होगा, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1, तो ये ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे बराबर. सो इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इन स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस इन स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ब्रैकेट कंप्लीट. यहाँ पे 2x प्लस 1 अपॉन 2 इन स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1, एंड इसका क्या होगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा. सो 2x. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 2x कॉमन निकाल देंगे. सो सपोज यहाँ पे 1 अपॉन 2 इन स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस इन स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है. इन ब्रैकेट यहाँ पे 2x कॉमन आ सकता है, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 इन स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 रह जाएगा. तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 2 2 कैंसिल, तो क्या बाकी रहेगा x अपॉन इन स्क्वेयर रूट, कैंसिल हो सकता है बट इतना ही आंसर रखो चलेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन 2 इन स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1. ओके, इतना ही रखेंगे तो भी चलेगा, कुछ टेंशन नहीं. ये फाइनल आंसर, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 4. ये सब आपको करना है. नाउ नेक्स्ट इज इन क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन नंबर 2 ही आपको करना है. क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर. फिर से वही डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर. तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर ये तो आपने लिखा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर 2x और ए स्क्वेयर का क्या होगा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे x जहाँ पे x है ही नहीं वो कांस्टेंट टर्म होता है, सो उसका डेरिवेटिव 0 रहता है. ये हो गया आपका फाइनल आंसर, डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ अच्छी तरह से, डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू माइनस 2x साइन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर. ये आपका फाइनल आंसर हो गया. सो ये सब आपको करना है. One more examples here. One more example. Second number example. In square root y is equal to in square root e raised to 3x plus 3x plus 2 bracket complete plus 5. यहाँ पे भी आपको क्या करना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिवाइड बाय dx, रूट का रेडियस होता है 1 अपॉन 2 इन ब्रैकेट, जैसे ब्रैकेट है 3x प्लस 2 प्लस 5 ऐसे लिखना है. बट अगेन डेरिवेटिव ऑफ जो fx है वो आपको लिखना है, उसका डेरिवेटिव फाइंड करना क्या है e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5. तो ये डेरिवेटिव्स करते वक्त आपको 1 अपॉन 2 इन स्क्वेयर रूट ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5 एंड डेरिवेटिव्स ऑफ दिस ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स ही होता है 3x प्लस 2, बट अगेन डेरिवेटिव्स ऑफ 3x प्लस 2 और 5 का डेरिवेटिव्स 0 ही रहता है.
So 1 upon 2 in square root e raised to 3x plus 2 plus 5 and derivatives of e raised to 3x plus 2 and derivatives of 3x is 3. तो यहाँ पे क्या होगा आपका फाइनल आंसर 3e raised to 3x plus 2 upon 2e raised to 3x plus 2 plus 5. तो इस तरीके से आपको ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करना है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव्स है. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज आपको बाय करने हैं. उसके बाद में कंपोजिट फॉर्मूले जो कन्वर्ट करते वो भी आपको देखना है एंड देन आपको ये सब इजी जाएगा. जो भी डाउट्स है बेसिक डाउट्स है आप मुझे डायरेक्टली पूछो क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. आपको जो ये फॉर्मूले बाय करना इम्पॉर्टेंट पार्ट है. सो बाय दिस फॉर्मूलेज एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट ऑल फॉर जो एग्जाम्पल्स है एक्सरसाइज में वो सॉल्व करने वाले हैं. लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है कि फॉर्मूले बाय करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. सो नेक्स्ट टाइम आप सब लोग फॉर्मूले बाय करके मेरे सामने बैठेंगे और आपके पास एक नोटबुक होगा. वो नोटबुक में आप सब लोग लिखेंगे क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं आपके सामने लाइव लेक्चर लेने वाला हूँ. सो आपके पास नोटबुक कंपलसरी होना चाहिए एंड बाय ऑल दिस फॉर्मूले. ओके, थैंक यू वेरी मच.